Hello students, here we are once again with JPIC District. Students, today in this video we are going to learn about the poem The Lake Isle of Innisfree. It was written by the well-known Irish poet W.B. Yeats, whose full name is William Butler Yeats. He was born in 13th June 1865 and was died on 28 January 1939 at Sandymount, Ireland. He was also known the national poet of Ireland. He has got his education at London. He was inspired with the two pre-Raphaelite brotherhood and the well-known poets Edmund A. Spenser and P.B. Shelley. From 1900, his poetry became grow and his physical and realistic poets came into life. He got the well-known and the greatest award, Nobel Prize in Literature in 1923. He had written many books and some of them are A Vision, The Second Coming, The Collected Words of W.B. Yeats, The Celtic Twilight. This very poem, The Lake Isle Innisfree, in this poem the writer wants to describe the beauty of nature, the feeling of peacefulness. The poem, The Lake Isle Innisfree, in this poem, the Innisfree Isle, Isle means a small Iceland. और ये कहाँ पे है? ये इट्स अ रियल आइसलैंड विच इज सिचुएटेड एज काउंटी स्लिगो इन आयरलैंड. इट वॉज रिटन इन 1888 एंड वॉज डिवाइडेड इन 3 कॉन्ट्रेंस. 3 कॉन्ट्रेंस मीन्स 3 स्टैंजा में 4 की लाइनों में डिवाइड किया गया इस पोएम को, जिसमें पोएट W.B. Yeats अपने बचपन के उस समय के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ उन्होंने उस छोटे से आइसलैंड को इंजॉय किया था. लेट्स रीड द पोएम एंड नो मोर अबाउट द पोएम. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rooms will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. In the first stanza, the poet wanted to go to that very Iceland, which was a small Iceland, where he wants to create a small house, small cottage for himself and to grow some beans and get the food from there, and also want to place a honeycomb from where he gets the honey. He realized that he will be very happy at that प्लेस. पहले स्टेंजा में राइटर ने कहा है आई विल अराइज एंड गो नाउ. राइटर कहता है कि मैं अब वहाँ जाना चाहूँगा एंड गो टू इनिस्फ्री. मेरा मन कहाँ है जाने का? उस छोटे से आइसलैंड पर, उस छोटे से द्वीप पर जाना चाहता हूँ. एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और उस शांत स्थान पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ. ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, और किस चीज़ से बनेगा वो? छोटे मोटे जो टेढ़े मेढ़े डंडे हैं वहाँ मौजूद, सरकंडों से, लकड़ियों से मिला करके और मिट्टी से मिला करके मैं वहाँ एक घर बनाऊँगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और कहते हैं कि वहाँ पर 9 लाइनों में मैं बीन की बुआई करूँगा. बीन्स मीन्स एक तरह की फली होती है, दलहन, जिसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है. उसको उन्होंने कहा कि एक क्यारी में उसको 9 लाइनों में मैं उसको बोऊंगा. अ हाइव फॉर द हनी बी, और उसी जगह पर मैं एक मधुमक्खी का छत्ता भी प्लेस करूंगा और वहाँ से मैं मधु प्राप्त करूंगा. एंड लिव एलोन इन द बी ग्लैड लाउड ग्लेड, और वह कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं उस एकांत स्थान पर अकेला रहूं, क्योंकि वो छोटा सा आइसलैंड है, वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर प्रकृति को गोद में अकेले रहते भी उन मधुमक्खियों के सुंदर स्वर को सुनना चाहता हूँ और उस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ जो कि शहरों से बहुत दूर है.
I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, the midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. In the second stanza, the poet wants to describe that he did not want to go to the far-off city where the noise was all around. Because there was so noise, so he did not feel easy. So he want to go to the Iceland to get some peace and pleasure for himself. Because in the Iceland there was peacefulness everywhere, because there was no one aside the poet. Poet wants to tell, writer कहना चाहता है, जो कवि है वो कहना चाहता है, I shall have some peace there. अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो उस प्रकृति की गोद में, क्योंकि मेरे अतिरिक्त वहाँ पर और कोई नहीं होगा, इसलिए अवश्य ही मुझे वहाँ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शहर हैं वहाँ पर वाहनों की हलचल है, लोगों की गूंज है, तरह तरह के शोर हैं, और वहाँ पर शांति की कमी है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. उन्होंने कहा, और जो वह स्थान है वहाँ पर शांति कब से शुरू होती है? सुबह से लेकर रात तक हमेशा शांति ही शांति होती है, क्योंकि वहाँ न वाहनों की रफ्तारें हैं, न फैक्ट्रियों का शोर है, वह एक नेचुरल प्लेस है, वहाँ शांत स्थान है. और कब से शुरू होती है? मॉर्निंग से शुरू हो जाती है, जब क्रिकेट सिंग्स में झिंगुर की आवाज़ आती है. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और पूरी रात में तब भी शांति होती है जब सितारे अच्छी तरह से चमकते होते हैं और एक सुखद माहौल क्रिएट करते हैं. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय भी माहौल शांत होता है जब वहाँ पर फूलों में पर्पल कलर के फूल जो है खिले हुए होते हैं, और चारों ओर जो स्थिति है, वातावरण है, वो बड़ा ही सुखद हो जाता है. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट सिंगिंग्स, और जो शाम का समय होता है, जो लिनेट नाम की छोटी सी पक्षी है, वो जब समुद्र की लहरों के पास आती है और वहाँ से उड़ती है, तो उसके पंखों की फड़फड़ाहट में एक शांति का अनुभव होता है. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. The writer wants to describe in the last stanza of the poem that he wants to live there day and night, because he gets the pleasure in the sound of the sea waves, which was making sound when they were mingled with the shore. He feel the peacefulness in his heart at that very time. Even he is on the roadside, he was always thinking about that very Iceland where he wants to go. इस लाइनों में स्टेंजा में कवि कहना चाहता है आई विल राइज एंड गो नाउ. वो कहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं उठ करके चला जाऊँ, मैं फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. और मेरे मन में क्या रहता है कि हमेशा दिन हो चाहे रात हो, हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है. ऐसा कवि क्यों कहना चाहता है? क्योंकि एक बार बचपन के समय में वह वहाँ गया हुआ था और वहाँ की पीसफुल को उसने इंजॉय किया था. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. वह कहते हैं कि मैंने, क्योंकि वहाँ के समुद्र की लहरों का जो टकराव शोर से होता है, उस समुद्र के किनारे से होता है, उस टकराव में जो शांति का अनुभव मैं करता हूँ, सुंदर स्वर को सुनना चाहता हूँ, उसी का अनुभव करने के लिए मैं फिर से वहाँ जाना चाहता हूँ और दिन और रात वहीं रहना चाहता हूँ. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे. वो कहते हैं कि जबकि मैं सड़क के किनारे भी जब मैं कभी खड़ा रहता हूँ, मैं सड़क पर ही खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे या किसी हलचल भरे स्थानों पर खड़ा रहता हूँ, किसी पगडंडी पर चल रहा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर. तब भी मैं उनके स्वरों में भी मैं यह अनुभव करता हूँ, मेरे मन में यह इच्छा होती है कि किसी तरह से मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँ और उस प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाऊँ, वहाँ के सुंदर पुष्पों को देखूं, मधुमक्खियों के गुंजार को सुनूं और समुद्र की उन लहरों के टकराव को भी सुनूं जो उस समय अपने समुद्र के किनारे मौजूद पत्थरों से टकरा करके करती हैं. इन दिस पोएम द राइटर वांट्स टू describe the different parts of nature beauty. Read this poem. With the help of this video, we will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.